Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently released a comprehensive series of videos on the topic of probability for students of Class 10 studying under the CBSE and Maharashtra State Board curriculum. This initiative aims to simplify and enhance students' understanding of this crucial mathematical concept. The Probability video series provides a detailed explanation of concepts such as experiments, outcomes, events, sample spaces, and probability calculations. Through clear examples and step-by-step explanations, students can grasp complex concepts easily and develop a strong foundation in probability. These videos also cover important topics like theoretical probability, experimental probability, independent and dependent events, and the concept of permutations and combinations. By utilizing intuitive visual aids and real-life examples, the probability videos ensure students can apply these concepts in practical scenarios. Additionally, the series includes numerous practice exercises and solved examples that can help students assess their understanding and improve their problem-solving skills. Through this comprehensive learning experience, students can gain confidence in tackling probability-related questions. Ignited Minds Tutorials probability videos are designed to cater to the diverse learning styles of students. With its user-friendly interface and engaging content, this series is a valuable resource for students preparing for their Class 10 board exams. So, whether you are a CBSE or Maharashtra State Board student, Ignited Minds Tutorials probability videos are an effective tool to strengthen your understanding of this essential mathematical concept and score well in your exams. A two-digit number is formed with the digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. यहाँ पे repetition नहीं हो रहा है, जरा सीधे बैठिए, ठीक है. A two-digit number is formed with the digits 2, 3, 5, 7. तो ये हो गया आपका 2, 3, 5, 7, 9. दो डिजिट का नंबर है, ठीक है. Without repetition. What is the probability the number form is an odd number? तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं बोलो. एक तो हो जाए भाई साहब 2, 3, ठीक है. फिर 2. तो आप यहाँ पे अगर सैम्पल स्पेस देखोगे तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा आपका. सैम्पल स्पेस होगा आपका 2, 3, ठीक है. 2, 5, 2, 7, 2, 9, ठीक है. ओके. और बोलो भाई साहब यहाँ पे 3, 2, 3. अच्छा रिपीटेशन नहीं होगा भाई साहब यहाँ पे 3, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 7, 3, 9 है ना भाई साहब. ऐसा है भाई साहब. कहाँ तक जाएंगे हम. 9, 9, 2, 9, 3, 9, 5 एंड 9, 7. 9, 9 नहीं हो सकता, 2, 2 नहीं हो सकता, 3, 3 नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये आपके नंबर्स हो गए. हाउ मेनी नंबर्स वुड देयर बी. 1, 2, 3, 4. गधे की तरह भाई साहब पूरा मत लिखते बैठना, ठीक है. 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे कितना है 2 से लेकर 9 तक. तो क्या आपका कितना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना हो गया. नहीं ये कितना हुआ. ये आपका रो कितने हो गए. कितने रोज हो गए. रोज कितने हो गए 2 से लेकर 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है. तो आपके 5 रोज इधर हो गए और इधर आपके 4 कॉलम्स हो गए. तो आपके टोटल नंबर्स कितने हो गए. कार्डिनल नंबर ऑफ एस दैट विल बी इक्वल टू 20. समझ में आ रहा है ये. ओके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर. इसमें अभी ऑड नंबर का क्या हो जाएगा. देखो ऑड नंबर मतलब क्या क्या हो. 3, 5, 7, 9 ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं. तो इस कॉलम में आपके कितने ऑड नंबर्स हो गए 4. इसमें बोलो भाई साहब 5, 7, 9, ठीक है. तो ये हो गया आपके भाई साहब 3. इसमें अगर हम देखेंगे 4 में 42 नहीं होगा. 45, 47, सॉरी 4 नहीं हो 52. फिर 52 नहीं होगा. 53 होगा. 57, 59. तो इसमें भी भाई साहब 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है. एक्चुअली में सब में 3 ही ऑप्शन मिलेंगे. सिर्फ एक आपका 2 के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका इवन होगा. तो यहाँ पे अगर हम आते हैं इसका भी भाई साहब 3, इसका भी भाई साहब 3 है ना. 3 + 3 + 3 + 3 तो ये आपका हो गया 3 + 4 12, 12 + 4 हो गया आपका 16, ठीक है. सो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट हम यहाँ पे बोलते हैं m और e बी द इवेंट, ठीक है. लेट e बी द इवेंट दैट the number formed is an odd number, ठीक है.
तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे भाई साहब यहाँ पे ई को अगर लिखना है तो यहाँ पे, क्योंकि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, 23, 25 कंटिन्यूअस भाई साहब, 23, 25, 27, 29, 33 सॉरी 35, 37, 39, फिर हो गया आपका भाई साहब 53, 57, 59, फिर हो गया आपका 73, 75, 79, ठीक है ओके। और क्या हो जाएगा बोलो, 93, 95 एंड 97, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आर वी करेक्ट? 3 4 12, 12 प्लस 4 16, ठीक है। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ई यहाँ पे कितना हो गया 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 16 अपॉन 20, 16 अपॉन 20, 4 4 16, 4 5 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया आपका 4 अपॉन 5, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो 3 डिजिट्स हैं 2 3 एंड 5, विदाउट रिपीटिंग आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या बन जाएगा देखो, ये आपके 2, पहला क्या नंबर बन जाएगा 2 3, 2 4, 2 5, है ना, सैंपल स्पेस लिख रहे हैं हम यहाँ पे। और बोलो भाई साहब 3 से 3 2, 3 4, 3 5, और क्या हो जाएगा 4 2, 4 4 एंड सॉरी 4 4 नहीं हो सकता, 4 2, 4 3, 4 3, 4 5 से 4 नहीं है ना, 5 है, चलिए 5 2, 5 3, 5 4 एंड 5 2, क्या बोल रहे हो? हाँ 24 और 34, तो आपका 2 3 है, 2 3 और 5 ही है ना सिर्फ, ओके चलिए भाई साहब 2 3, 2 5 और बन सकता है नहीं ना, ओके। यहाँ पे और कितना हो जाएगा बोलो, 3 3 2 3 5, फिर 5 2 5 3, यही ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ एस 1 2 3 4 5 6, कार्डिनल नंबर ऑफ एस हो गया भाई साहब आपका 6। अ 2 डिजिट नंबर इज फाउंड यूजिंग 2 डिजिट्स 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, ठीक है ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट ई बी द इवेंट, let E be the event that, let E be the event that, बस यही ना, सैंपल स्पेस ही लिखने बोला यहाँ पे, कोई इवेंट नहीं है, ठीक है। सैंपल स्पेस इज बेसिकली 6, ठीक है ओके। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स, ऋतुजा wants to pick a pen at random, what is the probability that the pen is blue, ठीक है। पेन इज ब्लू, तो आपका भाई साहब लेट ई बी द इवेंट दैट द पेन इज ब्लू, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे बोलो, कार्डिनल नंबर ऑफ ई, कार्डिनल नंबर ऑफ ई ये कितना हो जाएगा, ब्लू पेन्स कितने हैं आपके 8, तो यहां पे कार्डिनल नंबर ऑफ ई हो जाएगा 8। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, 5 + 8 + 3, 8 + 5 13, 13 + 3 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ई अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 8 अपॉन 16, दैट इज 1/2, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू, द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू इज 1/2, ठीक है ओके ओके ओके। Two dices are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once? चलिए फटाफट करना है इसको। Two dices are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once? भाई साहब सिंपल है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, सैंपल स्पेस हो गया 1 6 से लेकर यहाँ पे सॉरी 1 1 से लेकर इधर हो गया आपके 1 6 तक, फिर आपका 2 1 से लेकर इधर हो गया आपके 2 6 तक, ठीक है। फिर इधर हो गया 6 1
से लेकर भाई साहब 6 तक, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस, इसमें भाई साहब आ रहा है, तो आपका अगर हमने मान लिया लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट 6 कम्स अप एट लीस्ट वंस, ठीक है, एट लीस्ट वंस। तो बताइए भाई साहब ई क्या क्या हो जाएगा, ई हो गया एक तो 1 के कॉलम 1 के रो में कितना होगा 1 6, ठीक है, 2 के रो में क्या होगा 2 6, ठीक है, 3 के रो में क्या हो जाएगा 3 6, 4 के रो में 4 6, 5 के रो में 5 6, ठीक है, एटलीस्ट वंस बोला है तो 6 6 आना है, ठीक है, सो दिस विल बी 6 6, ठीक है, क्लियर है। ओके, कार हाँ 6 का पूरा रो आ जाएगा ना, करेक्ट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 6 का पूरा रो आ जाएगा 6 1 6 2, ठीक है, देन वी हैव 6 3 6 4, वी हैव 6 5 एंड देन वी हैव 6 6। तो टोटल आपका कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये कितना हो जाएगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स दैट इज 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज 36, तो 11 अपॉन 36 वुड बी द आंसर, ठीक है, क्लियर है। 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head? तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 coins are tossed simultaneously, head 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 tail tail head and then we have tail tail, ठीक है। at least one head मतलब ये वाला होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, है ना, at least बोला है तो कम से कम एक हेड, ठीक है। सो आपका let E be the event of getting at least one head, तो यहाँ पे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, H H H T T H, तो कार्डिनल नंबर ऑफ E कितना हो जाएगा 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा भाई साहब, कार्डिनल नंबर ऑफ E अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, तो कार्डिनल नंबर ऑफ E कितना हो गया 3 और कार्डिनल नंबर ऑफ S कितना हो गया भाई साहब 6, तो दैट विल बी 1/2, क्लियर है। हाँ सॉरी 4, 3/4 हो जाएगा ये, सो दिस विल बी 3/4। सो ये हो गया एटलीस्ट वन हेड का, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड का। एट द मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, अगर ज्यादा से ज्यादा एक टेल होगा तो यहां पे अपन अगर लिखते हैं लेट F be the event, let F be the event of at the most one tail, at the most one tail, तो आपका F क्या हो जाएगा बोलो, at the most one tail, ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो यहाँ पे भाई साहब इसको नहीं सिलेक्ट कर सकते अपन, सिर्फ इन दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो H T एंड देन T H, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2/4, दैट इज 1/2, ठीक है। अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल, तो यहाँ पे भी भाई साहब 2 होगा, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया इसका थर्ड वाले का, लेट D be the option, let D be the option of one head and one tail, one head and one tail, let D be the option of one head and one tail, तो आपका भाई साहब यहाँ पे D क्या हो जाएगा, one head and one tail, तो ये हो गया head tail and tail head, ठीक है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ D, सॉरी सीधा भाई साहब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ D निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितना हो जाएगा, 2 बाई भाई साहब कितना आ जाएगा 1 2 3 4, दैट इज अगेन 1/2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। फिर से वही एक्टिविटी क्वेश्चन, ओके। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड, 2020 का क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का। A card is drawn from a well-shuffled pack of 52 playing cards. Complete the activity to find the probability of the event that the card drawn is a red card. ठीक है,
तो S इज अ सैंपल स्पेस, मतलब अगर 52 कार्ड्स हैं तो S सैंपल स्पेस के हिसाब से S की वैल्यू कितनी हो गई 52। इवेंट ए, कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 13 हार्ट्स प्लस 13 डायमंड्स, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, दैट इज हाउ मच 26/52, दैट इज 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Complete the following activity to find the probability the card drawn is. Event A, the card drawn is an ace card. Ace cards कितने हैं आपके पास 4, ठीक है। The card drawn is a spade. Spade card कितने हैं आपके 13, ठीक है, ओके। So cardinal number of S कितना हो गया भाई साहब आपका 32। The card drawn is an ace. तो cardinal number of A कितना हो जाएगा 4। Probability of A कितनी हो जाएगी भाई साहब, कार्डिनल नंबर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, देखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, सो दैट विल बी ए, दैट इज 4/52, दैट इज 1/13, क्या ओके। कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, कितना हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी 13, फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई साहब, यहाँ पे क्या डालेंगे भाई साहब, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ओके 13/52, सो ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। चलो स्टेट बोर्ड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर। पहले तो भाई साहब सैंपल स्पेस बनाओ, 2 डिजिट नंबर है, कहा भैया पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों को, इन चारों को यूज करते हुए बनाना है, हाँ 23, क्यों 0 नहीं यूज कर सकते, 0 1, बहुत बढ़िया, 0 1 नंबर है क्या, वो 2 डिजिट नंबर है, 0 1 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, इट्स अ 1 डिजिट नंबर ना भाई साहब, 0 अगर आप पहले ही डाल दोगे तो ये 1 डिजिट नंबर ही तो हुआ, ठीक है, हाँ 10 बोल सकते हो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो पहली बात तो 0 से हम कोई नंबर ऐसा नहीं बना सकते जो स्टार्ट हो रहा हो, वी कैन नॉट यूज इट, ठीक है, हाँ क्यों, पहले 13 ही बनाना है, पहले 1 ले लो ना, देखो 1 का 0 के साथ एक कॉम्बिनेशन, फिर 1 का, यहाँ पे देखो रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यहाँ पे डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हैं, तो 1 1 हो सकता है कि नहीं, 1 2 12, फिर 1 3 13, देखो 1 से ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, 0 को आप पहले डिजिट नहीं बना सकते, तो उसको अपन ले ही नहीं सकते एज एन ऑप्शन, अगर आपको 2 डिजिट बनाना है तो, ठीक है। फिर क्या हो सकता है बोलो, 2 0 2 1 2 2 2 3, फिर क्या हो सकता है बोलो, 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3, क्या इसके सिवा और कोई 2 डिजिट नंबर बन सकता है, इन 4 नंबरों से क्या इसके सिवा भी और कोई 2 डिजिट नंबर बन सकता है, तो द आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि आपका अगर पहले डिजिट में 0 आ गया तो वो 1 डिजिट का ही नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा, ठीक है। सो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो गया बोलो, 1 2 3 4, और ये 3 कॉलम्स हैं, तो 4 3 12, सो दिस विल बी 12, ठीक है। देयर नंबर सो फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर, अभी इनमें से प्राइम नंबर भाई साहब कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका भाई साहब 11 एक प्राइम नंबर, 13 एक प्राइम नंबर है भाई साहब, फिर आपका 23 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। सो हम अगर लिखते हैं कि लेट P be the event, let P be the event of drawing a prime number, let P be the event of drawing a prime number, तो यहाँ पे भाई साहब P की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बोलो, P की वैल्यू हो जाएगी 11, फिर हो गया आपका 13, फिर हो गया आपका 23, और ये हो गया आपका 31, 11 13 23 एंड 31, आर वी क्लियर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ P कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितनी हो जाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ P अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, 4/12, दैट इज 4 1s are 4 4 3s are 12, so that is 1/3, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, हम समझ में आता हूँ, ओके ओके ओके। A bag contains 3 white, 3 red, 3 green and 3 black balls. One ball is picked up from the bag at random. What is the probability that the ball drawn is white? तो सैंपल स्पेस का भाई साहब कितना हो जाएगा कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी
आप बताएंगे आर्यन? 3। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? कितना हो जाएगा? 3 रेड, 3 white, 3 green and 3 black balls, so that will be 12. Total number of balls will be 12. A bag contains 3 red, 3 white, 3 green and 3 black balls. One ball is picked up from the bag at random. What is the probability that the ball drawn is white? तो आपका भाई साहब बॉल अगर व्हाइट है तो पहला बात तो आपका व्हाइट कितने हैं? 3. सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल विच इज व्हाइट विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ व्हाइट अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 3/12, दैट इज 1/4. ठीक है, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल. ठीक है, नॉट व्हाइट बॉल का कितना हो जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन? तो बता सकता है? हाँ, क्या क्या? नहीं, वैसे नहीं, विदाउट एनी कैलकुलेशन. नॉट व्हाइट, हाँ, जो वो बोल रहा है वो सही है कि भाई साहब आपके बाकी बचे जो ग्रीन और राइट, इनको अगर हम ऐड कर दें तो आपका 9/12 होगा. ठीक है, विच इज करेक्ट. बट हाउ इज ही कैलकुलेटिंग 9/12? कैसे कैलकुलेट कर रहा है ये? 12 आपके टोटल बॉल्स हैं और नॉन वाइट आपके कितने हैं? 9, तो 9/12 विच इज करेक्ट. ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि इसको करने का और कोई तरीका है? तो और कोई तरीका मतलब यहाँ पे क्या है? P ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल प्लस P ऑफ नॉट ड्राइंग अ वाइट बॉल, दिस विल ऑलवेज बी 1. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये आपका 1/4 है. ये आपका भाई साहब नहीं मालूम है, नॉट ड्राइंग अ वाइट बॉल, ये हो गया 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग अ वाइट बॉल विल बी 1 माइनस 1/4, सो दैट विल बी हाउ मच? 4 इधर हो गया, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4. तो इन्होंने आंसर बोला था 9/12 विच इज ऑल्सो करेक्ट. 3 3 is 9, 3 4 is 12. इट्स गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर. ठीक है, क्लियर है? ओके. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random. ये तो कल किया था ना हमने. What is the probability of the event that Pranali gets a? नहीं. ओके, चलिए 2020 का क्वेश्चन है, शायद आपके टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, बलून वेंडर हैज 2 रेड, 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स. ही वांट्स टू चूज. तो आपका भाई साहब कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 4, 2 + 3 4, 5 + 4 9 हो गया ये. ठीक है, ओके. अ रेड बलून, तो लेट R be the event, let R be the event of giving, what is the probability the event gets a red balloon. ठीक है, सो भाई साहब यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ R कितना हो जाएगा? 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R कितना हो जाएगा? 2/9. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके. अगेन ब्लू बलून भाई साहब, लेट B be the event, let B be the event of giving a blue balloon. ठीक है, सो आपका भाई साहब N of B ये कितना हो जाएगा? 3, है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना हो जाएगा भाई साहब? 3/9, दैट इज 1/3. ठीक है, आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब. A student made a cube shaped die from a card sheet. ठीक है, instead of writing the numbers 1 2 3 4 5 6 on its faces, he wrote the letters A B C D and F. मतलब जो आपका डाई होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, उसके जगह पे आपके अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं A B C D E F, one on each page randomly. If he rolls the dice twice, find the probability that he gets a vowel on the upper face both the times. तो अपर फेस में वॉवल आने के चांसेस. तो पहली बात तो सैंपल स्पेस लिख लो भाई साहब. सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका? देखो ए, ठीक है, एक हो सकता है AB, ठीक है, फिर आपका भाई साहब AC, ऐसा करते करते भाई साहब AF तक जाएंगे अपन. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बोलो? BA, देन BC, ऐसा करते करते भाई साहब BF तक जा रहे हैं इसमें भी. ठीक है, फिर आपका भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा? FA और यहाँ पे F. ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस वुड बी द सैंपल स्पेस. तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? वही सेम 36 जो आपका होता है भाई साहब.
डाइस में वैसा यहाँ पे भी हो रहा है। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 36, ठीक है। ओके, इफ ही रोल्स द डाइस ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स अ वॉवल ऑन द अपर फेस बोथ द टाइम्स। मुझे यहाँ पे बताओ वॉवल के, तो आपका लेट, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting a vowel on the upper face twice, upper face यहाँ पे both the times लिखा है, ठीक है, twice। यहाँ पे बस अब क्या हो जाएगा बोलो, ए होगा, तो एक इवेंट इस रो में, और कोई रो में, इस रो में दिख रहा है ए बी हो सकता है, ए सी नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि आपके वॉवल्स क्या हैं, एक ही है ए, और ये है भाई साहब आपका ई, ठीक है। तो दूसरा वाला यहाँ पे क्या होगा, ए ई होगा, है कि नहीं, दोनों भी वॉवल्स हैं। इसमें बताओ भाई साहब बी के साथ कॉम्बिनेशंस में दोनों भी वॉवल्स आए तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक आपका बी है, दूसरा आपका ए हो सकता है, लेकिन उसमें दो कंडीशंस नहीं हो रही है, मतलब दोनों भी वॉवल्स हो, तो इस पूरे लाइन में कोई भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन सा लाइन में आपको अगेन मिलेगा, ई वाले लाइन में। तो ई वाले लाइन में भाई साहब ई एक हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, ई और ई, सॉरी ई और ए, ठीक है, ये ई एंड ई ए, दीज आर द टू थिंग्स। अदरवाइज बाकी सब में आपका ए और ई तो आएगा, लेकिन साथ में एक और अल्फाबेट आएगा, और आपका कंडीशन यहाँ पे उस प्रोबेबिलिटी को निकालने का है जहां पे दोनों भी आपके फेस में वॉवेल्स आए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यही दो कंडीशंस होंगी जहां पे ए के रो में और ई के रो में आपको मिलेगा, ए और ए ई और ई एंड ई ए। सो आपका भाई साहब इवेंट जो ई है वो क्या हो जाएगा बोलो, ए ई एंड ई, ठीक है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ई कितना हो गया बोलो यहाँ पे 4। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये कितनी हो जाएगी बोलो, कार्डिनल नंबर ऑफ ई अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस। सो दैट विल बी हाउ मच, 4/36, दैट इज 1/9, ठीक है, 1/9 हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। 6 faces of a die are as shown below। 1 2 3 4 5 6 ना लिखकर अपन ने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी एन ओ। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का। इफ द डाई इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम दैट इंग्लिश वॉवल अपीयर्स ऑन अपर फेस। अपर फेस में भाई साहब इंग्लिश वॉवल आए। इफ द डाई इज रोल्ड वंस, अपर फेस पे इंग्लिश वॉवल आए, क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी? ए बी सी डी ई ओ है, हाँ, तो इंग्लिश वॉवल। तो पहली बात तो भाई साहब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई ओ। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बोलो, 6, ठीक है। अभी आपको इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एम, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एम दैट इंग्लिश वॉवल अपीयर्स ऑन द अपर फेस, क्या क्या हो सकता है, ए आ सकता है, और क्या आ सकता है भाई साहब, ई, और क्या आ सकता है, ओ, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एम कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितनी हो जाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ एम अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस। सो दैट गिव्स यू हाउ मच, कार्डिनल नंबर ऑफ एम इज 3/6, दैट इज 1/2। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। A bag contains 8 red and some blue balls. One ball is drawn at random from the bag. If the ratio of the probability of getting red ball and blue ball is 2:5, then find the number of blue balls. चलिए फटाफट।
ओए टाइम पास मंडली बैठी हुई यहाँ पे। ओके, अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अभी तो किया ना ये, नहीं चल। ओके, सो लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है। देखो अभी हमने एक सीबीएसई का क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, ठीक है। ओके, अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। सो यहाँ पे अब मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एन। तो आपका भाई साहब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 8, है कि नहीं? तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये कितना आ गया भाई साहब आपका 8, ठीक है, क्लियर है? ओके, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट r बी द इवेंट, लेट r बी द इवेंट ऑफ getting a red ball, let r be the event of getting a red ball। तो यहाँ पे आपका भाई साहब r be the event, तो यहाँ पे क्या हो सकता है बोलो? r be the event of getting a red ball। कैसे लिखेंगे इसको बोलो? आपके कितने रेड बॉल्स हैं? तो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ r कितना है भाई साहब आपका 8। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ r कितनी हो जाएगी? कार्डिनल नंबर ऑफ r अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ s, दैट विल बी हाउ मच? 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज n प्लस 8। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ r, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5। नाउ आपका लेट b बी द इवेंट, लेट b बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये कितना हो जाएगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ b, या अपन पहले कार्डिनल नंबर ऑफ b लिख लेते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ b भाई साहब कितने ब्लू बॉल्स हैं भाई साहब आपके? n, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना हो जाएगा आपका? कार्डिनल नंबर ऑफ b अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ s, सो दैट गिव्स यू हाउ मच? n अपॉन n प्लस 8, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, रेशियो ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ r अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2/5। तो इनको लिख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे कितना आया है आपका? 8 अपॉन n प्लस 8, और इधर कितना आया ब्लू बॉल्स में? n अपॉन n प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 2/5। ये n प्लस 8 और n प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आया यहाँ पे देखो, 8/n इज इक्वल टू 2/5, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू n इज इक्वल टू 8 इंटू 5। सो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 5/2, सो दैट्स हाउ मच? 2 4 8, n की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 5, दैट इज 20, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लू balls is 20, the number of blue balls is 20। क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this one? Okay, okay, okay। नंबर मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 11, तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कौन कौन से नंबर से? देखो 0 1 2 3 4। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? सैंपल स्पेस बताओ 10, फिर आपका भाई साहब यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउ, तो 10 हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं बोलो? 11, फिर 12 13 और ये हो गया 14, ठीक है, क्लियर है? और अभी 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली 20 21 22 23 एंड 24, फिर हो गया आपका 30 31 32 33 एंड 34, फिर 40 41 42 43 और 44, ठीक है, क्लियर है? ओके, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स, तो ये हो गया आपका भाई साहब सैंपल स्पेस। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 आपका कितना हो गया? 20, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो इसमें? प्राइम नंबर, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट p बी द इवेंट, लेट p बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आपका भाई साहब p यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बोलो?
11 एक प्राइम नंबर है, 13, ठीक है, देन वी हैव 23, हाँ 31, फिर हो गया आपका 41, 43, ठीक है। सो ये हो गया आपका 11, 13, 23, 31, 41 एंड 43, ठीक है। तो आपका भाई साहब कार्डिनल नंबर ऑफ पी कितना हो गया? कार्डिनल नंबर ऑफ पी इज हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितनी हो जाएगी? कार्डिनल नंबर ऑफ पी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, दैट गिव्स यू हाउ मच? 6 अपॉन 20। 2 3s are 6, 2 10s are 20, that will be 3/10, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4, भाई साहब मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या हो जाएगा बोलो? सो मल्टीपल ऑफ 4 ये हो गया 12, फिर हो गया आपका 24, फिर हो गया 32 एंड 44, ठीक है। तो लेट, अगर हमने मान लिया एफ बी, हाँ 40 भी है ना, 20 भी होगा, यस, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है। लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4। तो आप एफ में यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? व्हाट आर द नंबर्स? देखो यहाँ पे 12, 20, 24, 32, 40 एंड देन वी हैव 44, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ एफ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी भाई साहब? कार्डिनल नंबर ऑफ एफ अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो दिस विल बी हाउ मच? 6 अपॉन सैंपल स्पेस कितने का है भाई साहब आपका? 20, ठीक है। सो 2 3s are 6, 2 10s are 20, अगेन ये भी आपका 3/10 हो गया, ठीक है। सो दीज आर डन। मल्टीपल ऑफ 11 भाई साहब, मल्टीपल ऑफ 11 क्या क्या हो जाएगा बोलो? मल्टीपल ऑफ 11 ये एक हो गया, ठीक है, और बोलो 22, फिर आपका 33, फिर आपका 44, ठीक है। सो लेट्स से हमने यहाँ पे मान लिया लेट E be the event, let E be the event of getting a multiple of 11, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बोलो? E की वैल्यू हो जाएगी 11, 22, 33 एंड 44। तो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ E कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ E। और कार्डिनल नंबर ऑफ S कितना है भाई साहब आपका? 20। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ E अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, सो दैट विल बी 4 अपॉन 20। 4 1s are 4, 4 5s are 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ E भाई साहब कितना हो गया? 1/5। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।